Okay, good afternoon, everyone. Today we are going to discuss a new topic, and this is your demand schedules. Okay. Yesterday we are discuss about demand. What are the things influence the demand? ठीक. So today move further. We are going to discuss about the demand curve. Generally, it's happened in the into the market when the individual going to the market for purchase something. They are seeking about the what is the price of the product, and the price of the product is plays very important role to decide whether they are purchase the product or not. If they are going to purchase, what quantity it has, how much quantity he going to purchase, he or she going to purchase, it's depend on the price of the product, what kind of price of the product. And then second things, the requirement, what is the requirement of that particular, if it is a very necessary, then we are going for that. If there is some substitute available into the market, then they are going to the substitute product. Okay, so here is the table. Okay, for the demand curve. Suppose that there is a price unit and there is a quantity demanded. If the price is 50 rupees, then the quantity demanded by the consumer is 10. If the price is going to down, if the price is going to the down of particular product, in what conditions? There all the exemptions is available. All the exemption means the income is constant, the substitute product is constant, the taste and preference of consumer are constant. Okay. There is no competitor in the market, sorry, the competitor in the market, but the price is no changes in the price of the competitor companies. जो आपकी competitor company है उनके price में भी कोई changes नहीं है. अगर बाय द वे कम होती है तो आपकी आपकी जो क्वांटिटी है, जो आपका प्रोडक्ट है, उसका जो डिमांड है वो डिमांड कम हो जाएगी. ठीक है, तो देयर इज नो सच चेंज इन ऑल द कंडीशंस. द मार्केट इज परफेक्टली मूविंग ऑन. ठीक है, द टेस्ट प्रेफरेंस, the income of the consumer are the same, the price of substitute product is same. ठीक है, there is no changes in the price of the substitute. अगर वो सब चीज अवेलेबल है मार्केट में, then this demand curve is work. Then the demand curve is work. If the price is 50, then the quantity demanded is 10. If the price is going down, अगर ये price आपके कम हुए, but is fallen down and came into the 40, the demand is increased by 10 basis point and is going to 20. Again, if the price is 30, then the demand is 30. If the price is 20 rupees per unit, the quantity demanded is 40. And if the price is 10 rupees per unit, the quantity demanded by the 50 units of the consumer. This is the normal course of the business. इस तरह से डिमांड का कर्व चलता है, क्योंकि इट्स डिपेंड ऑन द प्राइस. ठीक है, मेनली जो कंज्यूमर का बिहेवियर है, वो कंज्यूमर का मेनली जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है अकॉर्डिंग टू द प्राइस, कि कितने का है, व्हाट इज द प्रोडक्ट, प्राइस इज द प्रोडक्ट इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डिमांड. ठीक है, और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जितने भी एजम्पशंस हैं उसके, वो सारे के सारे एजम्पशंस मार्केट में एग्जिस्टिंग होने चाहिए, मार्केट में अवेलेबल होने चाहिए. देन द डिमांड कर्व इज गोइंग टू, या डिमांड का जो लॉ है वो काम करता है. ठीक है, तभी वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं. कोई भी एक फैक्टर अगर ऊपर नीचे उसमें अगर चेंजेस होते हैं तो वो सारा का सारा जो डिमांड कर्व है वो फिर फॉलो नहीं करेगा मार्केट में, वो एग्जिस्टेंस नहीं करेगा. तो जनरली डिमांड कर्व भी कहता है कि जैसे जैसे प्रोडक्ट के प्राइस डाउन होते हैं उसकी डिमांड बढ़ती है, यानी वाइस उल्टा रिवर्स रिलेशनशिप है. प्राइस हाई है तो डिमांड कम है, अगर उसके प्राइस कम है तो डिमांड मार्केट में हाई होती है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में. ठीक, तो जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने यहाँ पे सेटअप किया है. अब अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, तो दिस इज फॉर प्राइस एंड दिस इज फॉर क्वांटिटी. ठीक, दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी. ये 10 है, ये 20 है, ये 30, ये 40, ये 50. अगेन ये 10, 20, 30, 40 and 50. This is the price. If the price is 50, then the quantity demanded by the consumer is 10 units. Right? The demand curve is this. ये लाइन यहाँ पे खत्म होगी.
जैसे ही आपने प्राइस क्या किया, कम किया, प्राइस जैसे ही फॉल हुआ, डिमांड आपकी यहां से यहां शिफ्ट हो गई, ये 10 से 20 पे शिफ्ट हो गई डिमांड। जैसे ही आपने प्राइस कम किया तो ये जो है इतने पॉइंट जो है यहाँ इधर, ठीक, ये 20 हो गई। अगेन जैसे ही प्राइस फिर से फॉल हुए 40 से 30 पॉइंट पे आए, डिमांड जो ये 20 पे थी ये 30 पे चली गई, बढ़ गया फिर आगे। अगेन जैसे ये 20 पे आया, आपकी डिमांड फिर यहाँ आगे बढ़ गई, ये डिमांड यहाँ चली गई 40 पे। और जैसे ही प्राइस अपने लोएस्ट लेवल पे आए हैं, यानी कि 10 पे आए हैं, आपकी डिमांड जो है सीधे यहाँ लास्ट 50 तक पहुंच गई। ठीक है, तो जनरली जो डिमांड कर्व है वो डिमांड कर्व किस तरह से फॉल होता है, नीचे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व के बारे में एक बात है कि डिमांड का ऑलवेज क्या होता है, फॉल इन डाउन होता है। ठीक है, वो नीचे की तरफ जो है क्या होता है, हमेशा डाउनफॉल होता है। ठीक है, नीचे की तरफ बढ़ता रहता है। ठीक, तो अब देयर इज अ सम रीजन कि ये डिमांड कर्व नीचे क्यों जा रहा है। ठीक है, एक तो प्रोडक्ट का प्राइस है, लेकिन उसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जो कि इस डिमांड कर्व को नीचे कर लाने का काम करती है। ठीक है, ये क्यों नीचे जाता है, उसके सेवरल रीजन, एंड नंबर वन रीजन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये लॉ क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स एज ए कंज्यूमर परचेज मोर एज ए प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि जब वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए 30 to 30, ठीक है, कंज्यूमर विल बी willing to give less price for the additional purchase. In other words, at a low price, consumer will demand more. ठीक है, जब अगर आपका प्राइस कम होता है तभी वो ज्यादा परचेज करने की कोशिश करता है, अदरवाइज वो ज्यादा परचेज नहीं करेगा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा होती है, जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा होती है तो आदमी हमेशा क्या करता है, उसकी कम क्वांटिटी को परचेज करता है। ठीक है, उसकी जो है क्वांटिटी को वो परचेज कम करता है। सपोज दैट एक हमने एग्जांपल लिया कि मैं कहीं से आया और मुझे बहुत सारी मुझे भूख लगी है जबरदस्त। ठीक है, तो मैंने कहा जी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप मुझे खाना दीजिए। या मुझे प्यास लगी है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, हम धूप से आए, हमें जबरदस्त प्यास लगी है तो मैंने कहा जी क्या करूं, उसने एक गिलास पानी का दिया, मैंने वो फट से पिया, बोलो वन मोर, मैंने कहा या। तो पहला जो मैं गिलास पानी का पीऊंगा, यानी कि उसको जब मैं कंज्यूम करूंगा तो उस समय उसकी यूटिलिटी मेरे लिए बहुत ज्यादा है, उसकी यूटिलिटी मेरे लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है, एक तरफ खाना रखा है, एक तरफ पानी रखा है, तो मैं पानी पीऊंगा बिकॉज ऑफ आई एम थर्स्टी, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, किसी भी हाल में पानी पीना है। एक गिलास पिया तो मुझे थोड़ा सा राहत बनी, मैंने कहा हाँ यार एक दूसरा दे दो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक, अब अगर उसके बाद फिर मुझे वाटर ऑफर किया जाए तो मैं बोलूंगा नहीं जी अब नहीं चाहिए, फिर बोले अरे जबरदस्ती पियो यार, आपको तो पानी चाहिए था, पियो। फिर मैं किसी तरह से पीऊंगा एक और, मैंने फिर अगर उसके बाद मुझे एक और दिया जाए तो फिर मैं बोलूंगा इसको फेंक दूंगा। यानी कि पानी की यूटिलिटी हमेशा सबसे लो होती, एकदम से खत्म हो जाती, उसकी मतलब वैल्यू नहीं है फिर। उसके बाद आदमी ज्यादा पानी पी ही नहीं सकता। भाई अगर आपके पास पैसा है आप उसको स्टोर रख सकते हैं, गोल्ड है आप उसको खरीद के स्टोर रख सकते हैं, डायमंड को खरीद के स्टोर रख सकते हैं, लेकिन वाटर की यूटिलिटी हमेशा इसी तरह की होती। तो इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब कि जब आपके पास कोई प्रोडक्ट कम है, सपोज दैट 50 रुपए प्राइस है, आपको खाने तो आपने 10 खा लिए, उससे आपको सेटिस्फेक्शन हो गया। अब आपने कहा मुझे और थोड़ा प्राइस मतलब थोड़ा और क्वांटिटी चाहिए और खरीदनी, तो आपने 20 यूनिट खरीद ली, फिर आपको क्या हो गया, फिर सेटिस्फेक्शन हो गया। जब आप 30 पे आ गए आपने कहा यार इनफ हो गया, अब तो मैं नहीं खरीदूंगा भाई, अगर इससे कम में देता है तो खरीदता हूँ, बाकी मैं नहीं दूंगा तुझे। आपने ये परचेज करा 50 पे, क्यों? क्योंकि आपको इसकी रिक्वायरमेंट थी, आपको बड़ा मन हो रहा है कि मुझे खाना है, आपने 10 रुपए दे दिए, उसने कहा एक और ले लो, तो एक और ले लो, तो चलो ठीक है, आपने कहा कोई बात नहीं एक और दे दो, आप एक और ले ली। यहां पे जब आप पहुंच गए एक मॉडरेट पोजीशन पे, जब आप पहुंच गए कि नाउ यू आर गोइंग टू सेटिस्फाई, अब आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बिल्कुल सही चला गया, तो फिर आप क्या करोगे, बार्गेनिंग करोगे,
उसी को लॉ ऑफ यूटिलिटी कहते हैं। अब आपने कहा अगर बेटा प्राइस कम करेगा तो मैं खरीदूंगा, अदरवाइज मैं नहीं खरीदूंगा क्योंकि मैंने तो खा लिया। सेम थिंग हैपन विद द वाटर कि भाई मैंने अब पानी पी लिया, पहले गिलास के लिए मैं ज्यादा पे करूंगा, दूसरे के लिए मैं थोड़ा सा कम पे करूंगा क्योंकि अब मैंने पानी पी लिया है, तीसरे के लिए मैं और कम पे करूंगा, और चौथे के लिए तो मैं बोलूंगा मुझे जरूरत ही नहीं है यार, मुझे पीना ही नहीं है। तो अब हम मैं क्या करूं, मैं इस पोजीशन पे आ गया कि मैं उसके साथ बार्गेनिंग कर सकूं। मैं बोलूंगा भाई अगर इससे कम में देता है तो मैं लेता हूं, अदरवाइज मैं नहीं लेता, है ना। होता है ऐसे। शुरू शुरू में जैसे मार्केट में कोई नया फ्रूट्स आता है तो काफी महंगा होता है, तो लोग लेते हैं कि यार ये है, सीजन है, महंगा है, लेकिन खाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ले लेते हैं। लेकिन जब अपने पीक पे था, उसने कहा हाँ भाई कितने का दिया, उसने कहा इतने, अरे छोड़ यार, कल तो खाए थे, आज नहीं लेता इतने में। आदमी फिर क्या करता है, उसकी यूटिलिटी उसकी कम होती है, उसके लिए उसकी आवश्यकता क्या होती है, धीरे धीरे कम होती रहती, क्योंकि उसने उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लिया होता है। तो एक तो ये रीजन है डिमांड कर्व का नीचे जाने का, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है कि जब आप किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं तो पहले बार में उसकी यूटिलिटी बहुत हाई होती है, उसके बाद उसकी यूटिलिटी धीरे धीरे कम हो, जब आप एक सेटिस्फेक्शन पे पहुंच जाते हैं फिर आप बार्गेनिंग वाली पोजीशन में आते हैं। तब क्या होता है, अगर मेरे पास बहुत सारे, मतलब मुझे आम खाने, खाए मैंने, एक खाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ठीक है, खाता गया, अब मैं परेशान हो गया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि यार तू ले ले यार, मतलब अब मैं एक्सचेंज करने की सोच रहा हूँ, मुझे दूसरा कोई चीज खानी है, तो मैं इस पोजीशन पे हूं कि अब मेरे लिए उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी बिल्कुल जीरो है। अब मैं चाहता नहीं हूं कि वो मेरे पास आए, अब मैं ये चाहता हूं कि कोई दूसरी चीज मेरे पास आए, तो अब मैं उसको एक्सचेंज करने पे सोच रहा हूं कि मैं इसको दूं और इसके बदले में कुछ और ले लूं। इसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, कि जब आप इस लेवल पे पहुंच जाए कि आप या तो बार्गेनिंग के लेवल पे आ जाए, या भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वाले चैप्टर उस पॉइंट पे पढ़ेंगे कि हम जब एक किसी चीज को खाने के बाद हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, उस चीज को किसी और को दे देते हैं, उसके बदले में कुछ और लेना चाहते हैं, ताकि अब मैं उसका भी टेस्ट लेना चाहता हूं क्योंकि इसका मैंने टेस्ट ले लिया है। ठीक। दूसरा जो रीजन है लॉ ऑफ इसके नीचे जाने का, वो है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स। अगर सब्स्टिट्यूट के प्राइस अप हुए, अगर सब्स्टिट्यूट के प्राइस भी डाउन हो रहे हैं, चीपर गुड्स इज ऑलवेज प्रेफर टू द कंसेंट्रल अदर्स, ठीक है, जो सस्ते वाले होते हैं। सो व्हेन द प्राइस ऑफ ए गुड्स फॉल्स, consumer will purchase more of it by reducing the expenditure from the other goods, which have become the relative consideration due to the fall of the price of the goods in the question. तो substitution efforts भी इसमें काम करता है कि सपोज दैट क्या हो गया कि अगर इस सपोज ये सिचुएशन है, मार्केट में 10 रुपए में 50 मिल रहे हैं और मुझे 50 रुपए तक खर्च करने थे, क्योंकि मुझे खाने थे, तो पहले मैं 50 रुपए खर्च कर रहा था 10 रुपए के लिए, ठीक है, 10 यूनिट के लिए, अब मैं 10 रुपए खर्च कर रहा हूँ 50 यूनिट के लिए, तो ये जो मैंने पैसा बचाया है, इस पैसे से मैं कुछ और यूज कर सकता हूँ। तो इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट्स भी पड़ता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। या फिर ऐसा हो कि आपका जो सब्स्टिट्यूट है उसके प्राइस अगर हाई हो गए, अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के प्राइस अगर हाई हो गए, तो फिर आप उसको छोड़ के इस पे आ जाओगे क्योंकि इसके प्राइस डाउन है। अगर ये लो कैटेगरी का गुड्स है, सपोज दैट ये लो कैटेगरी गुड्स है, ठीक है, हमने सोचा ये इंफीरियर गुड्स है, लो कैटेगरी गुड्स है, इसकी जो क्वालिटी वाइज इतना ठीक नहीं, लेकिन अगर पता चला कि जी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, तो फिर आप क्या करोगे, आप उसको छोड़ के फिर इसको लेना प्रेफर करोगे, बोलोगे यार ये ले। तो ये सब्स्टिट्यूशन एफर्ट्स भी आपका काम में आता है इसमें, ठीक है। सेकेंड है इसमें इनकम इफेक्ट्स, जैसे कि मैंने आपको बोला, एज अ प्राइस एनी प्रोडक्ट फॉल, the real income of the consumer is increase, that is the consumer can purchase more of this goods I have given. Suppose that ये क्या है कि suppose a customer has 100 rupees, if purchase of the goods of rupees 10 per unit, he will be able to purchase 10 unit with rupees 100. If the prices fall to the 5 per unit, the consumer will be able to purchase 20 units. ठीक है, तो अगर आपके क्या क्या आपके पास पैसा है, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई 50 रुपए पे 10 यूनिट मिल रही थी, अभी 10 रुपए के 50 यूनिट मिल रही है, तो हो सकता है मैं ऐसे 20 रुपए के खर्च करूं, 20 रुपए के 100 यूनिट ले लूं, क्योंकि मेरे परचेजिंग पावर जो है बढ़ चुकी है, बिकॉज ऑफ द प्राइस इज गोइंग टू फॉल डाउन। कीमत कम होने की वजह से मेरी परचेजिंग पावर बढ़ चुकी है, तो अब मैं ज्यादा गुड्स मार्केट में डिमांड कर सकता हूं, क्योंकि उसके प्राइस जो है क्या हो गए हैं, कम हो गए, ठीक है। चेंज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर,
ठीक है, जब प्राइस अगर आपके कम हो जाएंगे तो नंबर ऑफ कंज्यूमर आपके क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ने से मार्केट में डिमांड आपकी बढ़ेगी, डिमांड आपकी बढ़ेगी तो आपको सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, जब आपको सप्लाई बढ़ेगी डिमांड भी बढ़ेगी तो प्राइस ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे, तो प्राइस डाउन का आप फायदा उठा सकते हैं इस सिचुएशन में कि जब प्राइस डाउन हो तो लोग ज्यादा परचेज करने की कोशिश करते हैं, जिस समय प्राइस कम हो तो जब ज्यादा परचेज करते हैं तो फिर ये जो रूटीन है ये आपका ग्राफ यहाँ पे फिर फॉलो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एंड द लास्ट इज चेंज इन द नंबर ऑफ यूजेस। आप नंबर ऑफ यूजेस फिर क्या करने जाते हैं, चेंज। कैसे? एग्जांपल, सम कमोडिटीज लाइक अ मिल्क हैव अ सेवरल यूज, है ना, दूध का हम बहुत तरीके से यूज करते हैं, कई चीजों में काम आता है। इफ द प्राइस ऑफ मिल्क इज फॉलिंग, अगर आपके आपके दूध के प्राइस अगर इस तरह से डाउन हो गए, देन व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू डू, आप क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज यूज फॉर द टी, फॉर द मेकिंग कर्ड, फॉर चीज, फॉर घी। ठीक है, व्हेन द प्राइस ऑफ मिल्क फॉल, पीपल्स स्टार्ट यूजिंग फॉर अ सेवरल पर्पस, तब लोग क्या करेंगे, दूध का कई तरीके से यूज करना शुरू कर देंगे अगर मार्केट में दूध सस्ता मिलेगा तो। ठीक है, but when the price is increased, people restrict its use. So when the price of milk fall, the demand increase, and when the price increase, the demand will fall. ठीक, ये भी एक रूटीन होता है। ठीक है, जब प्राइस कम है तो आप उसका कई तरीके से यूज कर, अरे लेके आओ जाओ यार, आज ये बनाते हैं, आज वो कल वो बनाते हैं, और जैसे प्राइस आप हो गए तो फिर उन्होंने कहा भाई चाय बनानी, बस बात खत्म, ये दूध पीने के लिए यूज होगा, उसके अलावा और कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, तो these are the factors or these are the reasons why the demand curve is going to slow down. ठीक है, अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा और इनलार्ज करेंगे इसको, ये डिमिनिशिंग लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ये किस तरह से इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ता है, कैसे ये आपको जो है बताता है कि ये क्यों नीचे हो रहा है, सेटिस्फेक्शन आदमी कैसे गेन करता है। ठीक, वो सब हम पढ़ेंगे चेंज इन द डिमांड में, विच वॉज द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही, प्लीज आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।